اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماع عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس میں محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلہ کشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے جادو جنات کے متعلق، جادو جنات کے مریضوں کا آپ علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ میری رہنمائی لینا چاہتے ہیں یا چلہ کشی ہماری سرپرستی میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس بکس میں رابطہ کر سکتے ہیں یا زونگ والے نمبر پر 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہوں، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کال پر بات کرنا چاہتے ہیں، دوپہر 3 سے لے کر شام 6 بجے تک آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میں بہت سارے راز بھی رکھے جاتے ہیں اور آپ کا مسائل کے حل بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، کافی سارے سوالات پر بات ہوگی۔ حضرت چلہ کشی کے دوران جنات حصار توڑ سکتے ہیں یا توڑا سکتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں، جو بندہ چلہ کشی کے اندر ناکام ہوتا ہے یا تو وہ اپنا ملبہ استاد کے اوپر ڈالتا ہے یا استاد سالہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، کسی ایک کو اس کی بلی اٹھانی پڑتی ہے، کوئی ایک بندہ اس کے اندر مصیبت اٹھاتا ہے۔ نمبر 2 پر آپ ایک آیت کا بھی حصار کر لیں تو میں قسم اٹھا کے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، جنات آپ کا حصار نہیں توڑ سکتے۔ ہاں، جنات آپ کا حصار توڑا سکتے ہیں۔ توڑانا اور ہوتا ہے، توڑنا اور ہوتا ہے۔ توڑنا یہ ہوتا ہے کہ خود اندر داخل ہو جاتے ہیں، توڑانا یہ ہوتا ہے آپ کے ذہن کے اندر خیالات ایسے ڈالے جاتے ہیں، آپ کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ خود بھاگ جاتے ہیں۔ جب آپ بھاگتے ہیں تو پھر وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا حصار نہیں رہتا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک آیت کا بھی حصار کر لیں، جنات اندر نہیں آتے۔ یہ صرف انسان ہے جو اللہ رب العزت کی پاک کلام کی توہین بھی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں کھاتا ہے۔ جتنے جانور ہیں، جتنے جنات ہیں، یہ اللہ رب العزت کا جب نام آتا ہے تو یہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں پڑھائیں کر لی، یہ کر لیا، تب بھی علاج نہیں ہوتا، جادو جان نہیں چھوڑتا، اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے جو گناہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جنات آپ کے حصار کے اندر داخل نہیں ہو جاتے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ سامری جادو کا علاج کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں جس سے ہم سامری جادو کا اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگانا چاہیے کہ سامری جادو ہے یا کوئی اور جادو ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی بھی جادو ہے، الغرض میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہماری جادو جنات والی پڑھائی ہے، جو بندہ اس کو 41 دن پابندی کے ساتھ سن لیتا ہے، ساتھ میں اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے جاتا رہتا ہے، صدقہ دیتا رہتا ہے، یہ پڑھائی سنتا رہتا ہے، یقین مانیے گا اس پڑھائی کی کوئی فیس نہیں، کوئی چارجز نہیں، فی سبیل اللہ ہے، خود بھی سنیں، دوسروں کو دیں، سب کو دیں، اس کی عام اجازت ہے اور اس سے آپ کے بہت سارے مسائل آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو کیڑا ہوتا ہے کہ شاہ جی جڑا علاج تسی کرنا ہے وہ تے کوئی کر نہیں سکتا، تو اس وجہ سے پھر جو ٹائم میں آپ کو دیتا ہوں اس کی فیس لیتا ہوں، باقی علاج کی یا اللہ رب العزت کی کلام کی فیس نہیں ہوتی، صرف اپنے ٹائم کی ہوتی ہے۔ باقی آپ یہ پڑھائی سنتے رہیں، ساتھ میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک مقدس بابرکت ذات نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں، صبح کے نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ یہ جو بندہ بھی پڑھ لے تو وہ زہر کے اوپر بھی پھونک مارے گا تو تب بھی زہر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، لیکن یقین کامل ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب کیپیسٹی سے مراد کیا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ چلہ کشی کرواتے ہیں؟ میری محترمہ یا محترم صاحب ہیں، مجھے اس فیلڈ کے اندر 16 سال ہو گئے، جو اپنے بزرگوں سے چیزیں ملی ہیں وہ ایک الگ سے ہیں، اس پہ میں بات نہیں کرتا۔ جب شاگرد مجھ سے رابطہ کرتا ہے اس کی بہت ساری چیزیں میں محسوس کر لیتا ہوں، اس کا مائنڈ سیٹ دیکھتا ہوں، اس کے اندر عشق کے معاملات ہیں یا پھر لوگ انتقام کی بنا پر بھی لوگ عمل سیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں میں محسوس کر لیتا ہوں۔ جو اس قابل ہوتا ہے تو اس کو سکھاتا ہوں، ورنہ اس سے معذرت کر لیتا ہوں کہ بابا ہم آپ کے قابل نہیں ہیں۔ اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے قابل نہیں، یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے قابل نہیں، آپ کسی اور سے رابطہ کر لیں۔ کیپیسٹی سے مراد یہ ہوتا ہے تمہارے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے، تمہارا کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، میرا کوئی چیلنج بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی جنات ہیں یا میرے پاس کوئی پری ہیں، ایسی بات کوئی نہیں۔ لیکن اس بندے نے جو کمنٹس کیا نا، یقین مانیے اگر میں اس کا کمنٹ سے ویڈیو میں لگاؤں نا، آپ خود بھی ہنسیں گے
कि इसके पास क्या है, इसको ना उर्दू लिखने का पता लग रहा है ना इंग्लिश। बहरहाल अल्लाह आपको इज्जतें दे, ये अपनी अपनी नजर का कमाल होता है, कोई किसी को पहचान लेता है कोई नहीं। बहरहाल अल्लाह बहुत सारी इज्जतें दे, बहुत सारी खुशी हुई कि आपने मुझे नेगेटिव कमेंट्स किया, अल्लाह आपको बहुत सारी इज्जतें दे। शाह जी आज बात करूंगा इंशाल्लाह आपसे, प्लीज बात कर लेना जरूरी। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैंने किसी को मना नहीं किया हुआ, सबके लिए आम होता है, कोई किसी खास की जरूरत नहीं होती। हजरत लोग तशखीस के लिए परी का चिल्ला करते हैं, ये सही है? इसका अमल कैसे होता है? बिल्कुल बकवास होती है। जो बंदे तशखीस के लिए परी का अमल करते हैं, अगर वो परी 10 चीजें इसको सही बताती है तो 100 खबरें इसको गलत बताती है, जिसकी वजह से आमिल का बट्ठा बैठ जाता है। जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की कलाम से तशखीस के मामलात करते हैं या इलाज के मामलात करते हैं तो बहुत सारे मामलात आपके क्लियर हो जाते हैं। नहीं भाईजान, हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते और हमारी कास्ट का भी मसला है, प्लीज हमारी हेल्प कर दें। मैं आपकी बातों से बहुत मुतमईन हुआ हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये मेरे ख्याल में वो कमेंट्स है जिस पर उस दिन मैंने बात की थी। दूसरे नंबर पर मैं आज भी वही कहूंगा कि जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं तो लोग आपकी कास्ट को नहीं देखते, आपके कद काठ को नहीं देखते, आपकी रंगत को नहीं देखते, आपको सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो हमारी जुबान में कहते हैं कि जो पैसे वाला लोग लंगड़ा होकर चल रहा होता है ना, लोग उसको कहते हैं द फैशन दे, सही दे। तो लोग उसमें ये नहीं कहते कि इसके अंदर ऐब है, क्योंकि जो पैसा है ना ये बहुत सारे ऐब छुपा देता है। मैं आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 2014 में या 13 में मैं गया हुआ था, मेरे ख्याल में, या 15 में गालबन। उस वक्त मेरी नई नई शादी हुआ था, तो मैं केपीके के इलाके में गया हुआ था, तो किसी को पता नहीं था कि मैं ये दम का काम भी करता हूँ, क्योंकि मैं ये चीजें नहीं बताता, फिर रश हो जाता है, बहुत सारे मामलात होते हैं। और खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में एक बंदे को पता लग जाए, यूं समझ लें पूरा इलाका आपके पास शाम को इकट्ठा होगा, ये सूरत हाल होती है। तो उन्होंने मुझे कहा, मस्जिद के अंदर है ना, कि हम जमात के साथ बैठे हुए थे, हमारे अमीर साहब भी थे, तो उन्होंने एक रोटी लाई कि इसके ऊपर आप दम करके दे दे, हमारी गाय जो है वो बच्चा पैदा करने वाली है। तो अमीर साहब ने मुझे कहा, वो मुझे इस वजह से कहा कि आप हाफिज कुरान हैं, आप ये दम करके दे दें। तो मैंने कहा जी मैं रोटी पे दम नहीं करता, मैं गुड़ पे दम करके दूंगा। वो गुड़ लाया तो मैंने दम करके दिया, बच्चा आसानी से हो गया, और वो दूध भी लाया। फिर उसने इतने मरीज इकट्ठे करके दिए, मैं खुद भी हैरान था। अच्छा, जब 2-3 दिन गुजरे, फिर हम अगली मस्जिद में चले गए, तो उसमें यह हुआ कि वही बंदा मेरे पास है कि मेरी एक बेटी है, मैं आपको रिश्ता देना चाहता हूं। उस वक्त मुझे पश्तो नहीं आती थी, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, अल्लाह करे ये मेरी बात आपके दिल के अंदर उतर जाए, आपको पता लग जाए। तो वो अमीर साहब को कहा जी मेरी एक नौजवान बेटी है और मैं एक मुकदमे के अंदर इश्तिहारी हूं, मैं इसको फी सबिल्लाह देता हूं। तो अमीर साहब ने मुझे कहा, तो मैंने उनको कहा जी मेरी एक तो टांग टूटी हुई है, मेरी उस वक्त टांग में फ्रैक्चर था, तो दूसरे नंबर पर मेरी अभी शादी हुई है, तो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो अमीर साहब ने उसको कहा, उसने कहा जी आप 2 टाइम की अगर मेरी बच्ची को रोटी खिला देंगे तो मेरी बच्ची आपके पाउंड होके पिएगी। अच्छा, मैं उस पर रजामंद नहीं हुआ। खैर, अमीर साहब ने अपनी बात की। अमीर साहब ने कहा जी मेरे बच्चे भी हैं, बच्चे भी आपस में अदला बदला कर लेते हैं। तो उस पठान ने पता क्या, उसने कहा बलोचिस्तान वाले पठानों को हम एक बकरी भी नहीं देंगे, ये उसके लफ्ज है। उसने कहा इस पर सिर्फ मुझे इस वजह से इश्क आया है, एक तो बहुत ये अच्छा लगा है मुझे, और दूसरे नंबर पर ये कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, इस वजह से मैंने कहा। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन वज़रात, जब आप अपनी पहचान बना लेते हैं, पहचान इस वजह से बनी थी कि जब मरीज मेरे पास इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोगों को मेरी पहचान हुई, तो इस वजह से जब मैंने घर आकर अपनी वालदा हुजूर से कहा कैसे ऐसा मसला था, तो अम्मी जान मुझसे खफा हुई कि आप लाते उसको, रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है, सब मामलात। तो मैंने भी कहा, मैंने कहा रिज़्क़ तो मामलात नहीं है, लेकिन मैं उसके अंदर उलझा हुआ था, क्योंकि मेरा पता नहीं था कि मैं इसको ठीक भी हो पाऊंगा या नहीं। बहरहाल आप जब अपनी पहचान बना लेते हैं तो लोग तब आपसे वो करते हैं। लेकिन अब भी मैं कहूंगा कि 14 साल से अगर आपका कुछ नहीं बना तो आप दूर हो जाएं। कुछ लोगों को रूहानी चिल्ला कशी में कामयाबी नहीं मिलती, इसलिए वो शैतानी चिल्ला करने लग जाते हैं और शैतान इनकी फौरन मदद करता है और वो लोग शैतान के रास्ते पर चल जाते हैं। दा बिल्कुल टूल बकवास दे, इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है इस लफ्ज की, इस कमिट्स की। क्योंकि वजह यह होता है कि जब आप अमलियात के अंदर आते हैं ना, आप उस वक्त सब कुछ सर्च करते हैं कि फलां तावीज से, फलां नक्श से फलां का काम हो गया, फलां का नहीं हुआ। अगर इस चिल्ले में मुझे कामयाबी नहीं हुई तो फिर मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, जिसकी वजह से आपका माइंड पहले वहां पर अटक रहा होता है कि अगर मुझे यहां से कामयाबी नहीं मिलेगी मैं वो मुंह काला कर लूंगा। तो आप जब ये सोचते हैं तो जिन्नात और बहुत सारी चीजें आपके अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक जात भी आपको उठा के बाहर फेंकती है। आप शैतान के पास चले जाते हैं तो अपनी खुद तबाही करते हैं, या आपके अपने मामलात होते हैं, इसकी ये कोई हकीकत नहीं मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम हजरत, मोहब्बत के लिए कोई मुजर्रब अमल बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
मेरे मोहतरम, मैंने कल भी गुजारिश की थी, मोहब्बत के बहुत सारे अमल मैंने दिए हुए हैं, आप चैनल को विजिट कर लें, पता लग जाएगा। शेख, आप आलिम की बहुत कदर करते हैं, हम भी एक आलिम हैं, छोटे से मोहब्बत का मसला है, निकाह करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। हजरत, मैं आपसे भी ये कहूंगा, मैं आपकी दिल से कदर करता हूँ, आलिम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मोहब्बत की शादी आपके लिए सही नहीं रहेगी। वो इस वजह से कि जो मोहब्बत की शादी होती है ना, आप पहले जब उनको लवाजमात दे के फिर रहे होते हैं, तो बाद में बहुत सारे मामलात आपके उलझा देते हैं। इस वजह से जब आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन पढ़ा है, तो उसमें बहुत सारे वज़ाइफ हैं, आप चैनल का विजिट कर लें, उसके अंदर भी बहुत सारे मामलात क्लियर तौर पर उसमें बताए गए। हजरत, मुवक्किलात की भी बीवियां होती हैं, हमने सुना है इसमें दो किस्में होती हैं। जी बिल्कुल, दो किस्में इस तरह होती हैं, इनकी बीवी बच्चे भी होते हैं, शादी भी होते हैं, सब कुछ, शादी भी होते हैं, शादियां भी होती हैं। नंबर दो पर कुछ मुवक्किलीन ऐसे होते हैं, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर, इबादत के अंदर मस्त हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, वो उनको शादियों को होश भी नहीं रहता, वो शादी करते नहीं, जैसे हम अपनी जुबान में मजजूब कहते हैं। इसमें ये दूसरे ऑप्शन ये होता है, बाकी सारे। हजरत, अगर जिनजादी अपना रिश्ता लेकर आए तो क्या अगर हम राजी ना हो तो हमारी फैमिली को बीमार कर सकते हैं या नहीं? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो ये है कि हम क्यों बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हैं? आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। जब भी कोई जिन्नात से या कोई परी से आपका रिश्ता है, तो आप पहली फुर्सत में हमारा नंबर उसको दे दें, हम खुद उसको डील करेंगे। दूसरे नंबर पर, ये तो मजे की बात थी, दूसरे नंबर पर इसकी हकीकत नहीं है, जब ये मामलात हो तो आप फौरन इस्तग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह आपकी जान छूट जाएगी। इसमें जब आप अपना ये सोच लेंगे कि ये मेरा नुकसान कर सकते हैं, मुझे नुकसान दे देंगे, तो तब वो आपकी फैमिली को अटैक भी कर सकते हैं और बहुत सारे मामलात आपके उलझा भी सकते हैं, वरना इसके अंदर कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते अगर आप मजबूत हैं। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे उलमा और फुकहा का कहना है कि सिफली जादू सीखना या करना दोनों कुफर हैं। बिल्कुल, मैंने इसके पहले बात की थी, बिल्कुल कुफर के अंदर आदमी चला जाता है। उस्ताद जी, कोई मुवक्किल का अमल बता दें जिसमें फीस ना हो और इस मुवक्किल से हर कोई जायज़ काम ले सके। इसके लिए बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बनाकर दी हुई है, हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आपके अंदर अगर दम खम है तो आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बताता चलूं कि फीस जो लेता हूं वो मुवक्किल की नहीं होती, वो मेरे टाइम की होती जो आपको देता हूं। इस वजह से हजरत मेरी भी मदद कर दे, मैं भी गरीब हूं और चिल्लाकशी करना चाहता हूं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं ये कर सकता हूं, जो गरीब होते हैं मुझे उनका भी पता लग जाता है, जो मालदार होते हैं उनका भी पता लग जाता है, उनके लिए कुछ डिस्काउंट कर सकता हूं। बिल्कुल फी सबिलिल्लाह, मैं नहीं सिखाता बहुत सारे लोगों को, कम लोगों को अमलियात सिखाता हूं, क्योंकि अमलियात है, ये खेल तमाशा नहीं है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दुआ गो हूं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, 100% दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पर खास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।